नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे बेंगलोर का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सके। और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे इस वक्त उनकी चर्चा हो रही है। एमपी में उद्योगों की स्थापना से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और भी कई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कई सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री इस वक्त उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। Generally, we get to see red carpet everywhere, but if you invest in Madhya Pradesh, you are going to be getting a golden carpet. So that is why we're inviting you, of course, for our Global Investor Summit that is happening on the 7th and 8th of February 2025. If there was one thing that India is very known for, it is, of course, the tourism sector. But when it comes to the heart of India, when it comes field of cable and connection technology, Lab Group is a pioneer in introducing the concept of reliably connecting the world with an unbeatable range of cabling products and solutions, and by extension, our motto is reliably connecting India. I'd just like to talk a little bit about our experience in Madhya Pradesh over the past 12 years, give you a bit of a context and history. Lab India set up its first plant in Bangalore in 1998. Our second manufacturing facility was established in the Bhopal area in 2012. Since the Lab Group and Lab India management at that time felt that the state was very investor friendly and had great plans for infrastructure and industrial growth, Lab India invested in 30 acres of land in the Pilikedi industrial area of AKVN and built a 60,000 square feet building, a small building relatively speaking, primarily to manufacture and distribute wires for residential and the commercial market, as well as the panel building market. Lab India at the time also viewed Bhopal as a potential hub for distributing these products, since Bhopal was literally the center of India, as many have pointed out, and made distribution and logistics most efficient. In 2015, we invested in additional machinery to manufacture multi-core cables and communication cables for global standards, which is VDE, TUV, UL standards, and so on. And this was to serve the growth of the Indian markets in the area of machine building and equipment manufacturing. In 2018, we expanded the building by another 30,000 square feet, our cable plant, and additional machinery was put in to manufacture solar cables to support the renewable energy markets, aligning with the Prime Minister's vision of 175 gigawatts of renewable energy. These cables, until such time, were imported from our subsidiary in Korea. And today, since 2018 and today, we manufacture more than 2,000 kilometers of cables in our Bhopal plant. In 2019, Lab India set up a 1 megawatt solar farm in cooperation with the Madhya Pradesh Electricity Board and the government to support our sustainability and green energy initiative. This is a state-of-the-art solar plant which is sitting in our campus with high efficiency panels and a sun tracking system for maximum efficiency. And today we draw about 30% of the requirements of our power requirements from this solar farm. In 2022, the Lab Group decided to backward integrate ourselves into compounding. We make wires and cables, and an integral component of the cable is a polymer compound. And in 2022, we have set up a compounding plant, which is a dedicated 36,000 square feet in our Bhopal campus. And in fact, it is noteworthy to mention that this is the first compounding plant for the entire Lab Group. And they chose Bhopal to make that happen. And it is now, the plant is now operational for the last 18 months. In fact, this is a captive plant for us. With our growth, we are already at 50% utilization of this plant. In 2023, we have invested in an electron beam technology, an electron beam charger that will help in manufacturing specialty cables for solar, railways, metro, EV charging cables, and other industrial applications. In fact, in the Lab Group, this is only the second e-beam charger. The first one was established in Korea in the year 2012. And this is also sitting in our Bhopal campus. It is approved by the AERB of the Government of India.
In 2023, we also expanded our cable plant by an additional 30,000 square feet to accommodate more machinery to support the growing Indian market and exporting to lab subsidiaries including Europe and USA, and to our customers in Sri Lanka, Bangladesh and the Middle East markets. In summary, over a span of 12 years, we have grown from a single building of 60,000 square feet through multiple expansions to 160,000 square feet today. From 20 employees in 2012, we have grown to 200 plus employees, including staff, permanent and contract workers. Our output from the plant has increased more than 6 times in the last 10 years and in 5 times in terms of cable and wire kilometers produced. Bhopal plant has also been consistently ranked as #1 plant for the best quality performance in the entire lab group. And as you know, German quality is well known, and we are very proud to say that our Bhopal plant is a #1 quality plant in the entire lab group by German standards, and for 6 years in a row. And it's amongst about 25 plus manufacturing facilities that we have worldwide. We are thankful for the subsidies provided by the Madhya Pradesh government and the business-friendly climate for the past several years that has inspired us to invest in Madhya Pradesh to serve our Indian and global customer base out of our Bhopal plant. Now, coming to the future, we are looking at continued investments in our campus in Bhopal with new products, and we appreciate the help of officials from both MPIDC, Madhya Pradesh Electricity Board, and all other departments they had worked with. In fact, it's a pleasure to work with the gentlemen and ladies in these departments. More recently, in February this year, our group chairman, Mr. Matthias Lapp, had met Honorable Chief Minister and MPIDC officials and had committed to more investment in our Bhopal facility. True to his words, I am pleased to say that last month, our supervisory board has approved another investment to invest in a new cable plant in our campus, a dedicated warehouse, an extension to our current compounding plant, totaling greater than 2 lakh square feet. As part of our sustainability and green energy initiative, we will also be looking at installing solar rooftop panels on the roof of our existing and upcoming new buildings and open access solar power, and we look forward to working with MPIDC and the Ministry of Energy in this initiative. We must commend the improvement in infrastructure in Bhopal over the years in terms of roads within Bhopal, and I am a personal beneficiary of that, having back and forth Bangalore and Bhopal for the last 10 years. Highway leading to Pilikedi. In fact, when I started, it used to take 1 hour and a half from the airport to the plant. Today, it takes only 30 minutes. Okay? The Bhopal airport with improved connectivity to Bangalore and other cities in India, and rail connectivity for people and goods movement. Again, when I started in this company, I had to go through Mumbai or Delhi to go to Bhopal. Today, we have 2 non-stop flights from Bangalore to Bhopal. In summary, I like to say that the Madhya Pradesh government officials of MPIDC truly embody the spirit of ease of doing business, and our total investment over the last 12 years will be 40 million euro or 300 plus crore of investment is a testament to this spirit. Before I conclude, I'd like to convey to potential investors gathered here that Honorable CM Dr. Yadav is very eager and enthusiastic to get investments into MP and extending. Gentlemen. Thank you so much, ISA team. I would request Mr. Anshul Gupta to please remain on stage. I would next like to invite TIE Global to please join us on stage to exchange the MOU. TIE Global. TIE Global एक गौर लाभकारी संगठन है जिसका मिशन है सलाह, नेटवर्किंग और शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना. TIE Global. Ladies and gentlemen, we have the exchange of MOU between MPSCDC and TIE Global.
जोरदार तालियां हो जाए, चला जोरात चप्पळे. Thank you so much, gentlemen. Co-founder and partner, Erin Capital Partners, श्रीमान ग्रीन को ग्रुप के चेयरमैन अनिल कुमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है. लेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री शिव वेंकटरमण जी, वाइस चेयरमैन सीआईए सिद्धार्थ सेठी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए निवेश क्षेत्र की स्वनाम धन्य हस्तियां, ऑस्ट्रेलिया की हमारी अपनी राजनयिक परिवार से, वो भी हमारे हिस्सा बनी है. आपका भी वंदन है, अभिनंदन है. मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से कर्नाटक आकर के आज के इस दौर में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो कर्नाटक के हम सब बेंगलोर की इस वर्तमान की दशा के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी सारी हस्तियां बैठी है. मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की, और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही. उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है. और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी. ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है. और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही. और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उनने आह्वान किया था और पूरे देश ने एकजुटता के साथ जिस रास्ते पे माननीय मोदी जी की सरकार जा रही है, उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है. और आपने सबसे ज्यादा महत्व की इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई. मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा. ये हमारी बड़ी संभावना है. मैं अपने इस अवसर पर, खासकर इस अवसर पर मध्य प्रदेश को उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि जब हम कर्नाटक में आके बात करते हैं, कोयम्बटूर में बात करते हैं और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के ऑफर देते हैं, तो वर्तमान के दौर में देने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा,
लेकिन मैं काल के प्रवाह के उस उदाहरण को जरूर आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारी सरकार की मनोदशा क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा सन की शुरुआत होती है, जैसे ईस्वी सन 2024 की बात करेंगे, ये ईसा मसीह के जन्म के साथ होता है। हिजरी संवत की बात करेंगे तो वो उनके शरीर छोड़ने के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत यह अपनी पुरुषार्थ का है, हमारे पराक्रम का है, और पुरुषार्थ पराक्रम से ज्यादा ये सरकार की उस मनोदशा का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अर्थात ये विक्रम संवत 2081 नया साल हमारा जो होता है, वो नया साल का परिवर्तन कैसे होता है मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूंगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने रोम के तक जाकर के देश के आक्रांताओं को मार मार के छोड़ा था, जिनने हमारे देश पे शकों ने कब्जा किया ऐसा माना जाता है। लेकिन उसको हटाने के बाद एक बार फिर देश अपने पैरों पे खड़ा हो, देश का हर आंगन, हर घर, हर जगह हमारी अपनी जो पुरानी स्थिति उसको बहाल करे। तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, वो सारा कर्जा मेरे पास बही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है दोनों आ जाए, और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। सरकार जब मदद करती है तो अपनी उद्यमशीलता प्रारंभ होती है, हमारी क्षमता, बौद्धिक योग्यता, हाथ की मेहनत, सबका योगदान मिलता है। और ये विक्रम संवत में मैंने बताया कि विक्रमादित्य ने अपने पास कितना धन देने का मन बनाया होगा, अंदाज लगा सकते हैं, जो पूरे देश का कर्जा चुकाने की हिम्मत रखे। लेकिन ये तो आधा बता रहा हूं, आनंद तो तब और आएगा कि विक्रमादित्य ने उतना ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये तो हमने पुराने कर्जे चुकाने में चला गया, अब आगे कल फिर काम करेंगे फिर कर्जे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये कर्जा तो मैंने पुराना कर्जदार वालों के लिए दिया था, आप इतना ही धन और ले जाओ जिसके भरोसे भविष्य में भी आपको कर्जा की जरूरत नहीं पड़े। इतना दम जिसमें वो संवत की शुरुआत कर सकता है। ये उज्जवल परंपरा भारत की है, जिसके कारण से हमारी दुनिया में संस्कृति सदैव मान सम्मान पाती रही है। अर्थात जब हमारा युद्ध काल होगा तो युद्ध में हमारे सैनिक अपनी सैनिकों की मनोदशा की पराकाष्ठा करेंगे, हम बहादुरी से वहां मुकाबला करेंगे। लेकिन जब युद्ध काल नहीं है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार की मनोदशा, मनोभावना इसी भाव के आधार पर होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसी क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े। चूंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे, आईटी की तरह से भी हमने हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। और केवल आईटी में क्या, किसी सेक्टर में भी, एनर्जी सेक्टर में अभी आपके बीच में से आपने कहा है, वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। हमारे अपने परंपरागत स्रोत के बजाय ये जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की जो महत्ता है
और उससे भी आगे जाए। कौन सा सेक्टर है? टूरिज्म का है। टूरिज्म में तो अभी आपने फिल्म देखी है, हमारी विदिशा ने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। लेकिन टूरिज्म में भी केवल वो टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एजुकेशन से सारे क्षेत्र में। और एमएसएमई के हमारे पीएस ने बहुत अच्छी बात रखी, इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया है। मध्य प्रदेश अपने यहाँ अपनी पहचान इस नाते से बना रहा है कि सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं की है तो मध्य प्रदेश की है। और हम अपने भारत सरकार के अंदर भी एफसीआई को पूरे देश में सर्वाधिक गेहूं की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मध्य प्रदेश करता है। और केवल गेहूं नहीं, दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है। और बल्कि आगे बढ़े तो हमारा अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बड़े पैमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन क्षमता है अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो बहुत बड़ी संभावना है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन काफी समय हो गया है। हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते तो पहले, आजकल तो पत्र का जमाना कम हो गया, पहले लिखते थे तो उसमें पूरी कहानी लिखते और लिखते लिखते जब अपन आखिरी बात करते कि अब आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद sir. Ladies and gentlemen, could we have another round of applause for our honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. I would now request Mr. Chandramouli Shukla, IAS, Managing Director for MPIDC, to please propose the vote of thanks. बहुत ही आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित आदरणीय पाई साहब, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय शिव वेंकट रमणी जी, आदरणीय सिद्धार्थ सेठी जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस हॉल पर उपस्थित जितनी भी एक्सपर्ट ऑडियंस है, मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहां पर उपस्थित हुए। इस मंच के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी आभारी हैं कि जब हम आपसे 2 घंटे का कार्यक्रम के लिए समय मांगते हैं तो आप हमें पूरा 2 दिन का देते हैं। मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो एमपीआईडीसी की टीम है, पिछले 6 महीने में आपके कार्यकाल में हमने लगभग 10 शहर कवर किए हैं, 10 राज्य कवर किए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 4 सिटीज कवर किए हैं। आगे का प्लान और लाइंड अप है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल इस हाल में नहीं, जब शुरू में हमने ये कार्यक्रम निश्चित किया तो पहले 50 मेल में से हमको 40 रिग्रेट प्राप्त हुए। तो हमने तय किया कि हम छोटा हॉल रखेंगे सर, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, शायद बेंगलोर में हमको इतनी भीड़ ना मिले। मैं उन सारे 200-250 लोग जो बाहर खड़े हैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि still they have patience, they are having the coffee, they are waiting for the lunch and they came for the program despite there was no seat within this hall. मैं इस कार्यक्रम में सर लगभग 15 देशों के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विशेष रूप से कौंसिल जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया is sitting here. We have a Deputy High Commissioner from the UK, we have CZ from Italy and all other international delegates who have participated in the event. Me on my own behalf and on behalf of the Honorable Chief Minister, we thank you very much. You have taken all your time to come along. अंत में सर, जब हम इस तरह के कार्यक्रम का ये आउटपुट है, पर बैक एंड में जितने भी हमारे साथियों ने काम किया, जब इस तरह का रिजल्ट आता है, चाहे वो हमारी CII की टीम हो, चाहे ENY की टीम हो, FICCI की टीम हो, MPIDC के अधिकारी हो, इंक्यूबेशन मास्टर्स की टीम हो, इन सब के एफर्ट से सर